ये पूरी तिखी बहस तिखी नोक झोंक होंदी है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की नूं सिੱਧੀ धमकी दित्ती कि अज तो तुहाडे बुरे दिन शुरू, तुसीं सानूं ना दसो कि असीं की करना है, तुसीं सानूं आदेश देण दी हालत विच नहीं हो, साडी वजह करके यूक्रेन सुरक्षित है, असीं तुहानूं $350 बिलियन दित्ते ने। ट्रंप दे वल्लों इन्हां शब्दां दा इस्तेमाल कीता गया। ट्रंप दे वल्लों कहा गया कि तुहानूं साडा शुक्रगुजार होना चाहिए है, तुसीं तीजे विश्व युद्ध की संभावना दे नाल जुआ खेड रहे हो, तुसीं पुतन की भाषा बोल रहे हो। तो ज़ेलेंस्की दे वल्लों इसे गल नूं लैके ट्रंप ते पलटवार किया जाता है। ज़ेलेंस्की दे वल्लों कहा गया कि तुसीं पुतिन की भाषा बोल रहे हो, यूक्रेन युद्ध विराम नहीं चाहता। ज़ेलेंस्की दे वल्लों अपना स्टैंड एक बार फिर स्पष्ट किया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन युद्ध विराम नहीं चाहता, तुसीं मेरे ते दबाव नहीं पा सकते। ज़ेलेंस्की मिनरल डील करन लई दरअसल अमेरिका पहुंचे हुए सन, वाइट हाउस दे विच डील होनी सी, पर इसे दौरान दोहां दे विचाले गलबात चल ही रही सी, पर अचानक दोहां विचाले गलबात बहस दे विच तब्दील हो जाती है। ये बहस उस वेले शुरू हुई जदों अमरीका के उप राष्ट्रपति ने कहा कि तुसीं यूएस मीडिया अगे साडे ते इल्जाम लगाए, जिस तो बाद मामला वधदा गया। दोहां देशां दे मुखियां दी सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई ते ज़ेलेंस्की तुरंत वाइट हाउस तो चले गए ते पूरीआं तस्वीरां जो कि कैमरे दे विच कैद हो गईआं। हालांकि आम तौर पर जिहा बहुत घੱਟ हुंदा है कि जदों वाइट हाउस दे विच अमरीका के राष्ट्रपति होण तां दूजे देश का वड्डा आगू मेहमान के तौर पर वाइट हाउस दे विच पहुंचिया होवे, किसी गल नूं लैके किसी मुद्दे नूं लैके डील होनी होवे, पर मीडिया के मुखातिब हुंदियां मीडिया के सामने इस तरीके दे नाल तिखी बहस होवे, तिखी बहस धमकी तक पहुंच जाए तो अपने आप दे विच हैरानीजनक है। क्योंकि लगातार पूरी गलबात है जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। हर कोई वो गलबात सुन के भी हैरान है कि दो वड्डे आगुआं दे विचकार इत्थों तक भी गल किवें पहुंच सकती है, गल धमकी तक किवें पहुंच सकती है। ट्रंप दे वल्लों सिੱਧੀ धमकी दे दी गई कि अज तो तुहाडे बुरे दिन शुरू हो गए। ज़ेलेंस्की ने पलटवार कर दिता कि तुसीं पुतिन की भाषा बोल रहे हो। What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? Bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful I will answer. to come to the Oval Office of the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're in no... We will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You Don't- will not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about- gambling with what do you World think War about- III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm- It's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? We will feel it in the future. God ਤਾਂ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ज़ेलेंस्की ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
जी देखिए, बिल्कुल ये जो हुआ व्हाइट हाउस में, ये शायद पहली बार हुआ होगा व्हाइट हाउस के इतिहास में किसी दूसरी कंट्री का लीडर जब यूएस प्रेसिडेंट से मिलने आता है तो इस प्रकार से हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, वाद विवाद दोनों तरफों की तरफ के बीच शुरू हो जाता है। ये पहली बार हुआ है व्हाइट हाउस की हिस्ट्री में। जेलेंस्की को ट्रंप ने बुलाया था व्हाइट हाउस मिलने के लिए। ट्रंप चाहते थे कि जो मिनरल डील है वो जेलेंस्की साइन करे। अब मिनरल डील क्या है? मिनरल डील का मतलब ये है कि यूएस को यूक्रेन के जो मिनरल रिजर्व्स हैं उनमें एक हिस्सा चाहिए, जिसके एवज में यूएस यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा रशिया से। एक ये बेसिक फ्रेमवर्क है उस डील का। जेलेंस्की वो डील साइन करने को तैयार नहीं है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए वो तैयार नहीं है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि पहले हमारी जो सिक्योरिटी गारंटी है उसको इंश्योर किया जाए कि यूक्रेन सुरक्षित रहेगा रशिया से, और यूक्रेन को जरूरत पड़ेगी तो उसे मदद की जाएगी। ये वो सुनिश्चित करना चाहते हैं यूएस से और दूसरे यूरोपीय देशों को। तो क्योंकि वो व्हाइट हाउस में थे, बहस चालू हो गई दोनों तरफों के बीच में। ट्रंप ने उनको समझाया जेलेंस्की को कि देखिए, आप हमारे बिना कुछ नहीं है। हमने अगर आपको मिलिट्री इक्विपमेंट्स ना दिए होते, सप्लाईज ना दी होती, तो आप ये वॉर 2 हफ्ते भी सर्वाइव नहीं कर पाते। ट्रंप ने ये भी जेलेंस्की को समझाया कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है इस वक्त, आप जो हम कह रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जेलेंस्की को बोला कि आप तो सितंबर में आके दूसरी पार्टी के लिए प्रचार करके गए थे और आप डिसरिस्पेक्टफुल हैं जो अमेरिका ने आपके लिए किया, यू आर नॉट थैंकफुल टू व्हाट अमेरिका हैज डन। तो वाद विवाद तकरीबन 40 मिनट तक ओवल ऑफिस में चला। सैकड़ों मीडिया के कैमरास भी वहां पर लगे हुए थे और ये सब चीजें लाइव प्रकाशित की गई पूरे विश्व भर में मीडिया चैनलों द्वारा। लेकिन जो इससे स्टार इस मीटिंग का निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि जो पीस टॉक्स की ट्रंप बात कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो चुके हैं। ट्रंप ने रशिया को तो मना लिया, रशिया से तो बातचीत चालू करवा दी रियाद में, पर आप देखिए ट्रंप ने उसमें यूरोप के देशों को सम्मिलित नहीं किया। अभी तक ट्रंप जेलेंस्की से अलग बुला के मुलाकात कर रहे थे, तो ट्रंप ये सोच रहे थे कि जेलेंस्की को दबाव बना के डील उनसे साइन कर लेंगे। जब दबाव में जेलेंस्की नहीं है तो इस प्रकार से वाद विवाद दोनों तरफ हुआ। उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि जेलेंस्की रूट के व्हाइट हाउस से निकले, उनको लंच भी नहीं पूछा गया व्हाइट हाउस में। तो ये तनातनी बढ़ गई है। जो पीस टॉक्स है दे हैव ब्रोकन डाउन ऑफिशियली। अब अगला रुख क्या होगा? ट्रंप का ये कहना है कि जब भी जेलेंस्की को लगे कि वो पीस के लिए तैयार है तो वो व्हाइट हाउस आ सकते हैं। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि जब भी जेलेंस्की तैयार हो तो हमसे फिर बात करने आ सकते हैं, पीस के लिए जब तैयार पर। जेलेंस्की का कहना है कि जो उनके इंटरेस्ट हैं वो सर्व नहीं हो रहे हैं इस डील में। पहले भी एक परसेप्शन ये था कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से रशिया को चुके हैं। उन्होंने रशिया को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के फेवर में वोटिंग कर दी यूनाइटेड नेशंस में, यूएस में। उसके बाद ट्रंप लगातार ऐसे बयान देते हैं जो पुतिन के फेवर में ज्यादा नजर आ रहे हैं। ट्रंप इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ट्रंप रशिया को आइसोलेशन से निकालना चाहते हैं। ट्रंप सारी एनर्जी चाइना पे फोकस करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यूरोपीय देश अब बैक कर रहे हैं जेलेंस्की को, आप देखिए तकरीबन 28 से 29 देशों ने यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन काउंसिल ने, सबने और जेलेंस्की के फेवर में जैसे कहते हैं कि ट्वीट किया है और स्टेटमेंट दिया है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप है, जो यूएस है, अब वो अलग थलग पड़ता जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप जो है अमेरिका की यूरोप के साथ, अब वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है क्योंकि पूरा यूरोप एक साथ है, जेलेंस्की के साथ है। और जब ट्रंप की बारी आती है तो ट्रंप और यूएस इस वक्त अलग अलग नजर आ रहे हैं। अब इसमें अगला कदम क्या होगा इस पूरे पीस टॉक्स को लेके? रशिया बनाना बाकी है, रशिया इसको कैसे देखता है जो कुछ भी ओवल ऑफिस में हुआ। अब क्योंकि ट्रंप इससे पहले मैक्रो और स्टैमर को भी व्हाइट हाउस में होस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल सिद्धांत देखना होगा कि आखिरकार जो ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ।